क्यों रुस गया है तू, 10 मैनू छड़ना है कि 10 के छड़ मैनू, खुदा के बंदे बदल जा, वक्त है अब भी समझ जा. I don't know whether he's a good orator or not, but he's a great manipulator. He can manipulate people's minds by saying things. Today, the person joining us on the show is not just a veteran politician, he's also a renowned Indian lawyer. He was with the grand old Congress party for the last 30 years until last week when he decided to finally end his 30-year-long relationship, 30-year-long journey with the Congress party. So thank you so much for speaking to ThePrint. Thank you, आपने समय निकाला. मैंने आपके बहुत interviews देखे, and the one thing which really stayed with me, I think, was your urge and want to be really independent even at this age. I mean, you could have just stayed back and chilled, but the freedom you wanted to speak your mind is something which was... This is the reason why I never joined the bureaucracy, never joined government service. This is the reason why I never worked under any senior throughout my career. This is the reason why, I have always loved my freedom. And whatever I've done with passion, with conviction, and unafraid of the consequences when my conscience tells me that what I am doing is right. That's how I've lived my life. Right, sir. So, आपको लगा 30 साल बाद आज की नहीं अभी ज़रूरत है और फ्रीडम की ज़रूरत है? बिल्कुल बिल्कुल लगा, क्योंकि पार्टी में क्या होता है ना कि आप यू आर क्रिप्ड एंड कन्फाइंड. मैंने सोचा था कि क्योंकि एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टी तो एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है ना, लेकिन इतनी ब्यूरोक्रेटिक है वो. ओके. Despite the fact that it's a voluntary organization, it's highly bureaucratic. Okay. It's seniority oriented, and if you raise your voice, and not raise your voice literally, but you raise an issue, which is here people speak what the leader wants to listen to, right? Now, if you do that, then why are you in politics? Correct. तो मैंने ये कभी नहीं किया, कभी भी नहीं किया, और जो मेरे मन में आता था मैं बोल देता था. और वो बात मैं कोर्ट में भी करता हूँ, कोर्ट के बाहर भी करता हूँ जी, पॉलिटिक्स में भी करता हूँ, पार्लियामेंट में भी करता हूँ. लेकिन फिर भी कई बार ऐसा लगता है कि यार वो स्वतंत्रता खत्म हो गई. So I wanted that very badly, and that's how I did what I did. So you thought that for the last 30 years it was there, but suddenly what happened? I mean, no, it was not. Swatantrata was not there. I was doing what I was doing. Okay. I was still exercising my right to freedom. Right. But I still was functioning within a hierarchical system. Yes. You see, take for example a court of law. If you argue a case, the people are watching you. There are people in the courtroom, your colleagues are watching you, right? There's a level of understanding and appreciation as to what you're saying, what you're standing for. Here, none of that happens. Okay, okay. Right? So, because everybody is watching others, what they're saying. Okay. So, sir, when you say that, here people only say what the leader wants to listen to, do we also have a leader at the helm of affairs who want Hazuri? I'm not individualizing this issue. I'm not talking about a political party. I'm talking generally about politics and people in politics, right? Take, for example, Parliament. There's a piece of legislation. A party takes a view on it, right? Now, you are not supposed to deviate from that view. Correct. ठीक है ना? तो अगर मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है और मुझे उसके खिलाफ बोलना चाहता हूँ, तो मुझे वो स्वतंत्रता क्यों नहीं है? बिल्कुल. वो आज़ादी होनी चाहिए ना? बिल्कुल. उसीलिए मैंने कहा था कि मैं कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करूँगा, और I must congratulate and be grateful to Akhilesh that he agreed. Yeah, and of course we'll talk about that. But how does it feel to be independent? Wonderful, I mean, wonderful. I'm just looking forward to it. Yeah. क्योंकि बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है. हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत कम लोगों को मौका मिला. I think last time it was Ram Jethmalani was elected as an independent.
But sir, is it successful? You think you can do some that will be benefit? No, it's not that. It's not. होगा क्या ना कि I will now be asked my independent opinion Okay. on issues. Right. ये नहीं आपसे पूछा जाएगा कि भाई हाँ आप सर तो कांग्रेस में नहीं हो, आप बोलती है? बीजेपी नहीं हो, ये आलोचना कर रहे हैं बीजेपी की, वो आलोचना कर रहे हैं कांग्रेस की, आपका क्या हाल है? आपका क्या राय है इस पे? ठीक है ना, तो दैट विल कैरी वेट. Right, absolutely, and you wanted that basically. I wanted that. Right, sir. And you think आपसे जाएगा पूछा because कहीं ना पार्टी का भी बहुत वेटेज आ जाता है. 100% पूछा जाएगा. पत्रकार पूछेंगे, आप जैसे लोग पूछेंगे. जरूर हम तो पूछेंगे ही सर. So कहीं ना कहीं सर एक this is completely I'm not getting you to speak anything about against the Congress party, absolutely not. As a layman sir, हम लोग बाहर से जब देखते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है, कितनी बड़ी पार्टी का किस तरीके से फंक्शनिंग है. कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस की थोड़ी बहुत कमी है सर. ये तो हर पार्टी में है. अच्छा, ये कोई आरोप लगाना कि कांग्रेस पार्टी में इंडिपेंडेंस नहीं है. इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि जो सत्ता दल है वहाँ कम, इससे भी कम इंडिपेंडेंस. सर किसमें? जो सत्ता पक्ष के लोग हैं. अच्छा, जो भारतीय जनता पार्टी जो है. मैं क्या किसी का नाम लूँ? अच्छा, हाँ, ऑफ कोर्स, बट क्लियरली हाँ. जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वहाँ तो इंडिपेंडेंस है ही नहीं. अच्छा, हम तो फिर भी बोल लेते हैं, मैं बोला हूँ ना. हाँ, तो वो नहीं बोल सकता कोई. अच्छा, तो वो लोग, आपको लगता है कि उनकी पार्टी में तो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंस नहीं है, आपकी विद इन कांग्रेस फिर भी इंडिपेंडेंस था? बिल्कुल सही. फिर भी लोग सुनते थे, मतलब? बिल्कुल सुनते या नहीं सुनते, बोल तो सकते थे. आप लोग बोल सकते थे. अच्छा, वहाँ बोल ही नहीं सकते हैं? कोई नहीं बोल सकता. अच्छा, आपको किसको आपने सुना? सुब्रमण्य स्वामी के अलावा किसी को सुना आपने? वही एक शख्स है जो बोलता है. राइट सर. इफ से अ पर्सन हैज टू जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी और जॉइन पॉलिटिक्स, व्हाट शुड दैट पर्सन लुक? See, the problem with politics in India today is that ये एक जैसे सुनामी होती है ना, एक तरफिया काम होता है कि भाई अभी लगता है पोल्स ये कहती हैं, या हमें लगता है कि भाई भाजपा जीतेगी, या लगता है कि आप जीतेगी, या लगता है कि कांग्रेस जीतेगी, आरजेडी जीतेगी, जेडीयू, कोई भी हो, तो फिर लोग ज्वाइन करने लगते हैं. ओके, ठीक है ना, क्योंकि पॉलिटिक्स हियर इज़ नॉट, कोई आदमी पॉलिटिक्स इसलिए हिंदुस्तान में ज्वाइन करता है कि किसी तरीके से मुझे कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाए. इसीलिए जो लोग पॉलिटिक्स में आते हैं वो अक्सर नॉन प्रोफेशनल लोग होते हैं. ओके, नॉन प्रोफेशनल लोग. अगर आप देखो बाकी डेवलप्ड डेमोक्रेसीज में, डेवलप्ड नेशंस में, तो वहाँ या तो वकील होंगे, या कोई डॉक्टर होंगे, या बड़े बिजनेसमैन होंगे हु आर एक्सपर्ट्स इन देयर ओन फील्ड, वो जाके ज्वाइन करते हैं पॉलिटिक्स, एंड दे ब्रिंग देयर एक्सपर्टीज ऑन टू द टेबल. आप अगर चाइना में भी देखो, जो उनका पोलिट ब्यूरो है, दे हैव एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड्स, engineers, highly talented people. यहाँ तो टिकट आप दे दो तो वो सुनामी हो रही हो तो कोई भी इलेक्ट हो जाता है. और इलेक्ट्रेट भी किसी तरीके से फैसला तो ले लेती है वोट करने का, लेकिन ये नहीं उसको पता कि इसका परिणाम क्या होगा. करेक्ट, परिणाम क्या होगा. अभी ठीक है ना कि अभी आप कल आप पीसीसी प्रेसिडेंट थे किसी प्रदेश में, सडनली आप एजुकेशन मिनिस्टर बन गए, या आपका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, आपका लॉ से कोई लेना देना नहीं है, आप लॉ मिनिस्टर बन गए. ठीक है ना, क्या करेगा, उसको सिस्टम ही नहीं पता. ठीक है, ऐसा हम लोगों ने वैसे बहुत बार देखा भी है. हमने देखा, कई बार देखा है, और एक ही सरकार में नहीं देखा, कई सरकारों में देखा. बिल्कुल, क्योंकि समझौते भी करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ अगर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है आपने किसी का सपोर्ट लिया है, किसी कास्ट लीडर का सपोर्ट लिया है, तो उसको मंत्री तो बनाना ही पड़ेगा ना. तो रुकेगा कि साहब मुझे ये मंत्रालय चाहिए, तो कैसे इनकार करोगे? और कोलिशन गवर्नमेंट में खास तौर पे जी कैसे इनकार करोगे? सो ये एक इनहेरेंट वीकनेस है इंडियन डेमोक्रेसी में. राइट सर. So we journalists are asked this question a lot of times that आप लोग बाहर तो डेमोक्रेसी के लिए इतना लड़ रहे हैं, कैमरा पे, माइक पे, सब पॉलिटिशियन से पूछ रहे हैं, what kind of a democracy you experience inside your own organization? So I'm going to ask you a very similar question
कि आप लोग जब एक पार्टी के अगेंस्ट लड़ते हैं या किसी के खिलाफ लड़ते हैं, किसी की आइडियोलॉजी की, अरे हमें पसंद नहीं आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का वर्किंग स्टाइल, व्हाटएवर, आप अपनी पार्टी में सर मुझे थोड़ा बताएं कि हाउ डिड डिसेंट एंड डेमोक्रेसी वर्कड विद इन द कांग्रेस? Actually, dissent and democracy works, I think, in large measure in the Congress Party, Okay. but in a much limited way in the present Bharatiya Janata Party. क्योंकि जब the leader is so omnipresent, ठीक है ना, कि आप एयरपोर्ट पे जाओ तो जिस टेबल पे आप बैठे हो वहाँ उनकी किताब है, ठीक है ना, आपको आधार कार्ड लेना हो या कोई आपका कुछ लेना हो तो तस्वीरें आ जाती हैं, ठीक है ना, और जब टेलीविज़न खोलो तो कोई ना कोई वही लोग भाषण दे रहे होते हैं, तो इतना ज़्यादा बम्बार्डमेंट हो गया है लोगों के माइंड में, तो कोई विरोध कर ही नहीं सकता। ऑपोजिशन में फिर भी विरोध हो सकता है क्योंकि वो सेंटर ऑफ पावर इतना स्ट्रांग नहीं होता। यहाँ तो आप सरकार हिंदुस्तान चला रहे हो ना, यहाँ विरोध करोगे तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। No, but when we talk about within the party dissent and democracy, within the party, कहाँ within the party? कौन बोल पाएगा? कोई बोल ही नहीं पाता। आप मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ सर। कांग्रेस में तो फिर भी बोल पाते थे, हम बोलते थे, ऐसी बात नहीं है, हम बोलते थे। आई एम जस्ट सेइंग, आई थिंक द लेवल ऑफ इंटरैक्शन and democratic freedom has been much more in the Congress, right, than I think, I personally, that's my view, I may be wrong Absolutely. also, than in the Bharatiya Janata Party. This is what I feel. Right. वहाँ तो मैंने कभी आवाज़ देखी नहीं, और आप देखिए जो लोग प्रेस एड्रेस करते थे, जो who are very important, सडनली वो दिखते भी नहीं है। बड़े बड़े मंत्री थे, अब वो दिखते भी नहीं है। आपको दिखे दो चार ऐसे हैं जो सडनली, and they were holding very important positions, right, but they are not to be seen. ना वो बोलते हैं, ना पब्लिकली बोलते हैं, ना प्राइवेटली बोलते हैं, but they are sort of cooling their heels के शायद लोग फिर खुश हो जाए उनसे, शायद वापस बुला लें। सर इस वक्त पे अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के लीडर ये इंटरव्यू देखेंगे, वो जरूर ये कमेंट करेंगे कि अरे सर ने अपनी पार्टी से ज्यादा हमारी पार्टी के बारे में बात किया है। Let's talk of Indian democracy. जिस तरह से हर चीज को कैप्चर किया जा रहा है इस देश में, मेरे ख्याल कोई ऐसी संस्था नहीं है जो कैप्चर्ड नहीं है, और ख़ास तौर पे आपका मीडिया, मैं प्रिंट की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो टोटली कैप्चर्ड है। करेक्ट, ठीक है ना, तो उसका कॉन्सिक्वेंस आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है ना, अभी आपकी इंस्टीट्यूशन ऑफ वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर्स ऑफ IITs, आपकी इलेक्शन कमीशन के वर्किंग, गवर्नर की इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना, ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, ठीक है ना, उसमें अपने बंदे बैठा के उसको मतलब कि सारी संस्थाएं जो लोकतंत्र की बुनियाद है, अगर आप उनको कैप्चर कर लो, आज तो लगता है कि ठीक है, लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो आपको 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल के बाद पता चलेगा। और आप भी जो आज इंडिपेंडेंट हुए हैं, इसका भी हमको कुछ एक थोड़े साल बाद पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप मेरा रवैया देखोगे ना तभी पता चलेगा, मैं बोलूँगा तभी पता चलेगा, लिखूँगा तभी पता चलेगा। करेक्ट, ठीक है ना, राइट सर। तो मैं इसका मोहताज तो हूँ नहीं किसी का मैं आज। बिल्कुल, ये एक ठीक है ना जी, मैंने किसी से जी हुजूर तो करना नहीं, किसी को भी नहीं करना, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, कोई और भी हो जी, ठीक है ना। और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी के पक्ष में, किसी के खिलाफ में बोलना चाहिए। अगर कोई प्रधानमंत्री जी यार ये सरकार अच्छी बात करती है, आज मैं कह भी सकता हूँ बिल्कुल कि ये सही फैसला इन्होंने लिया, ठीक है ना। अगर मैं किसी दल में होकर ये कहता तो कहेगी आप कैसे बोल गए, कैसे। हाँ, ये भी एक होता है ना सर, दैट आप अगर कोई अच्छा कोई काम कर रहा है तो आप लोग नहीं तारीफ कर सकते कि कर सकते हैं। इट्स करेक्ट, यू आर राइट, इट्स डिफिकल्ट, राइट, इट्स डिफिकल्ट। सो आई थिंक दैट यू कैन बी मोर ऑब्जेक्टिव। No, you see, we knew the culture. We know the culture. No? The culture is there is very little room for appreciation. Right. That's the culture. That's the culture of all political parties. And
केवल एक पार्टी की बात नहीं हो Absolutely. रही। There is very little room for appreciation and a lot of room for criticism. Yeah, it's a lot of- Criticize मतलब कि कांग्रेस मुक्त भारत इस थिंग, हम कहें बीजेपी बिल्कुल खराब, कोई बिल्कुल बस criticize हाँ. क्रिटिसाइज का कोई There's no like कोई ऐसे, constructive. हाँ करेक्ट। अच्छा, फिर देश का ऐसा मोमेंटम होता है, देखिए देश कोई 1 2 4 बंदे से नहीं चलता, ठीक है ना, देश का एक अपना मोमेंटम है, ठीक है ना, उस मोमेंटम के साथ तो देश तो चलेगा ही आगे, वो आप रोक नहीं सकते, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे जी। लेकिन जो परमानेंट इंस्टीट्यूशंस हैं देश की, विच आर कॉन्स्टिट्यूशनली देयर फॉर द चेक्स एंड बैलेंसेस दैट आर रिक्वायर्ड इन डेमोक्रेसी, अगर उनको आप डिस्टर्ब करोगे तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंस तो बहुत ही भारी पड़ सकता है। जी। Whenever all the leaders, opposition leaders talk about that we will see in 2024 and we are going to defeat Prime Minister Modi, who do you think is that one person? And it's just a it's बिना इंटरव्यू के भी मैं आपके साथ बैठती थी, मैं आपसे पूछती, मैं आपको एक छोटी सी बात जरूर सर। मुझे कहते हैं कि साहब ये मास लीडर नहीं है, बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इंदिरा जी मास लीडर थी? जब प्रधानमंत्री बनी इंदिरा जी मास लीडर थी? पूछता हूँ मैं आपसे। नहीं थे ना, नहीं थी, ठीक है ना। राजीव जी जब प्रधानमंत्री बने तो मास लीडर थे। नरसिम्हा राव जी मास लीडर थे? तो आप नहीं थे ना, नहीं थे ना, प्रधानमंत्री बने, परहैप्स वेरी सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर। वाजपेयी थे, वाजपेयी जी थे जी, ठीक है ना। तो आप किसी को अपॉर्चुनिटी दोगे तो वो मास लीडर भी बन जाएगा। अब अपॉर्चुनिटी ही नहीं दोगे, फिर कहेगा तो तुम मास लीडर नहीं हो, तो बनेगा कैसे वो? तो दिस इज ऑल अ मिथ, राइट। देयर इज नो समथिंग एज मास लीडर्स, इट्स द एक्सपोजर ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट, विदिन सोसाइटी, राइट, through by virtue of the fact that he is discharging a particular responsibility which takes him in the midst of people, right, that makes him a mass leader. So if you never let him go into those within society, how will he ever become? And then you will say you're not fit for it because you're not a mass leader. Right. So who are we talking about here? We're talking about nobody. I'm talking about nobody. I think this attitude is wrong. Right. कि भाई वो उससे सामने कौन है? भाई सामने आ जाएगा, उसको अगर आप अपॉर्चुनिटी दोगे तो वो खुद घूमेगा, and that depends then on his connectivity, his ability to attract people around him. Now that may happen with one person, it may not happen with another person, right, ठीक है ना। But then you should allow people that freedom. अगर आप अलाउ ही नहीं करोगे, आप कहोगे कि ये लोग जाएंगे बाकी लोग नहीं जाएंगे, तो फिर क्या, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप क्या क्वालिटी देखते हैं सर, अगर आप एक सिटीजन की तरह देखते हैं कि प्रधानमंत्री में ये क्वालिटी हर एक आदमी में, देखो कुछ क्वालिटीज होती है, कुछ खामियां भी होती हैं, ठीक है ना। बट अगर किसी को लीडर बनना है, द फर्स्ट क्वालिटी इज ह्यूमिलिटी, राइट। सेकेंड क्वालिटी is the ability to connect with people. And you can connect with people in different ways. Mahatma Gandhi was not a great orator. Okay. But he connected with people. Yes. Right? Others, Vajpayee ji was a great orator. Yeah. Great orator. He connected with people through his articulation. Right? Modi ji has that quality also. He's good orator, of course he is. I don't know whether he's a good orator or not. Yeah. But he's a great manipulator. He can manipulate people's minds by saying things which impact people in some ways. Right. Right. In other words, he understands the psyche of those people. The whole majoritarian culture in this country, right, that has been brought about by these articulations, because they are extremely attractive. Right. Right. Extremely attractive, like in extremely attractive to
to evoke the kind of emotions that will make you vote for him. You know what I mean? Yes, absolutely. Right? Yeah. He has that quality. He's not the great orator that Vajpayee ji was. Right? Sushma Swaraj was a great orator, outstanding orator. So I would just Sushma like to... Swaraj was outstanding. But there have been many others who were not. Right. But they were great leaders. Narasimha Rao was no orator. He was not a mass leader, but he was a great prime minister. You just said that, Narendra Modi is not a great orator, but he's a great manipulator, and he can, they can read into people's psyche. Yes. How do you think these people are doing it so well, and the Congress can't, or the Congress couldn't? That's not whether somebody is doing it well or not well. You asked me generally what are the qualities. All right? Different people have different qualities. करके मतलब सर जब आप बोलते हैं, then there should be a level of understanding, right, which comes from experience, which comes with maturity, level of understanding of issues, right? That requires a lot of hard work. You just don't understand issues without applying your mind. And applying your mind means hours and hours of hard work. हो क्या रहा है इस देश में? First, the wealth of this country is being given away to 4-5 people. Right? Is this the democracy we wanted in this country? Now, the Prime Minister is a very talented man, I'm not saying that. But does he not know what he's doing? And don't you think there are going to be consequences of this? Right? Who are the people who are buying the airports, buying the ports, buying suddenly overnight? So, these are dangerous things. So, where is education in this country? I mean, it's all right. I mean, matters of faith are of great importance in this country, but they will not ensure that there are no stunted children in India. They will not ensure that every child gets quality education in India. And mothers will not be anemic. And that children who don't have a computer, who don't have access, right? Digital India is no good for them. Who is talking about these things? And what is the national news in this country? कि यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, वहाँ इतिहास में ऐसा हुआ था, ऐसा हमारे साथ ज्यादती हुई थी. I mean, ठीक है, वो अपनी जगह में ठीक है. But does that have any relationship with people and the concerns of people? So you may win elections, you may be a great orator. What is it for the country that you are doing? Right. ये इसके जो परिणाम होंगे वो वक्त बताएगा. सर जब भी ये आर्ग्यूमेंट रखा जाता है, पुट फोर्थ किया जाता है, तो हमेशा एक साइड से एक आर्ग्यूमेंट आता है. बीजेपी वाले भी बहुत बार बोलते हैं कि आप लोग की तो सरकार थी इतने टाइम तक, आप लोग सब मंत्री थे, तब कौन सा करप्शन नहीं हुआ और कौन सी मैंने करप्शन की बात की. नहीं हुआ. एक स्टेट पॉलिसी होती है, पॉलिसी ऑफ पार्टी की होती है, हमने ये करना है जी. ये तो ऐसा कहें कि भाई कम्युनल दंगे कभी हुए ही नहीं, ये तो गलत बात होगी. ठीक है ना. लेकिन आप जाकर यूनिवर्सिटी में घुस जाओ, दंगे करा दो. ठीक है. इस तरीके का कभी नहीं था बैक देन. ऐसा तो नहीं हुआ ना. तो फिर अगर एक नीति बन जाती है कि ऐसा कराना है कि उनका राजनीतिक फायदा होगा, तो वो तो अपने आप में मैं समझता हूँ कि भविष्य के लिए तो बहुत ही खतरनाक है. सो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू सर? थोड़ा सा फ्यूचर प्लान्स हमने बताएं कि अब आप. मैं लिखूंगा, ठीक है ना, मैं किताबें लिखूंगा. I complete 50 years in the Supreme Court this year. Wow. 50 years in the Supreme Court. बड़ी बात है. बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी. और आपने इतने हाई प्रोफाइल केसेस लड़े हैं. 1972 में आया था यहाँ जी, और आज 2022 है. 50 साल हो गए. 50 साल हो गए. 50 साल किसी संस्था में रहना बहुत बड़ी बात है. ह्यूज, एब्सोल्युटली, इट्स अ बिग डील. तो जो मैंने सीखा है कोर्ट के द्वारा, उसके बारे में लिखूंगा, लेक्चर दूंगा. मैं चाहूँगा यूनिवर्सिटीज़ में भी जाऊँ. ठीक है ना.
बाकी मैं थोड़ा बहुत लिखता भी रहता हूँ, जी। आपको मालूम है। पॉलिटिक्स में ऐसा कुछ क्या प्लान्स है, पॉलिटिकल प्लान्स कुछ हैं पॉलिटिकल आगे? प्लान्स भी हैं। मैं कोशिश करूँगा कि एक विपक्षी मंच बने जी सर। और जहाँ सब लोग इकट्ठा होकर 2024 में संघर्ष करके मुकाबला करें। आप so you want to get the opposition together under one See, umbrella? I'm just a small man, I'm just an individual. I don't think I have the ability alone to do it, but I'll try and sort of gather support and see if we can get people together. Right. This has been tried a lot of times in the past also. Yes. फिर थोड़ा नहीं, वो मुश्किल होती है, इसको आसान थोड़ी जरूर, ना of होता है। course. आपकी जर्नलिस्ट फैमिली में लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, तो बिल्कुल लोग नहीं। तो फिर सबको Totally sir. इकट्ठा करना I would agree with you there. I would totally agree with you there. But but the main target remains the BJP. I think that you have totally I've made it said clear. so. Ideologically, I want an inclusive India. Simple. Ideologically, I'll do everything to have an inclusive India. बस बात खत्म. I don't want the kinds of discrimination that I'm seeing. I don't know the kind of, atrocities that I'm witnessing in my country. I don't want any of that. I'll fight for that. I don't want politicians to run roughshod over people. I don't want policemen to do what they're doing to our citizens. Right. I don't want the ED to be targeting people. I'll fight for those people. But both so in court and outside court. Right, sir. But let's be honest. Do you actually, really, sir, tell me what's in your heart, really? Do you think 2024, they're not going to come back? You will be able to fight I think this? this is all very speculative. Right. This is all very... You never know what happens tomorrow. Yeah, that's मैं कल आपको definitely. इंटरव्यू बिल्कुल. दे सकूंगा कि नहीं, मैं ये नहीं जानता. हाँ सर, वो तो फिर कुछ 2024 नहीं तो बहुत पता. दूर है, अभी दिल्ली तो दूरस्थ. पर फिर भी आपका जितना पॉलिटिकल समझ है, जो अभी अंडरस्टैंडिंग ऐसा है है, देश, आप कुछ नहीं कह सकते. कुछ नहीं कह सकते. किसी ने सोचा था कि आप विल विन द काइंड ऑफ मेजॉरिटी दैट दे वांट. सही बात है. ठीक है, तो क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं कह सकते. किसी ने सोचा था कि ममता बनर्जी विल डू व्हाट शी डिड इन वेस्ट बंगाल? नहीं था ना. तो ये जब 5 minutes in politics is enough to change the future of people. राइट. सर, अभी पॉलिटिक्स की बहुत बातें हो गई, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, पर सर इज ऑल्सो एन अकॉम्प्लिश्ड पोएट एंड अ लिरिसिस्ट. क्यों रुस गया है तू 10 मैनू छड़ना है कि 10 के छड़ मैनू. ये बहुत ही ब्यूटीफुल लाइंस है सर. ये अगर कोई आपकी पोइट्री पढ़े, सर दिस इज कम्प्लीटली माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन, तो ऐसा लगता है कि आपके पास सब कुछ है, पर कहीं डीप लेवल पे आप पेन को बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं. वेरी पैशनेट अबाउट दैट. राइट. आई एम वेरी इमोटिव एज अ ह्यूमन बीइंग. राइट. ये मेरे पिताजी के, क्योंकि हम लाहौर में वो वकालत करते थे जी. एंड मंटो का केस हुआ था, आपको मालूम होगा. ही वाज द लॉयर. ओके. फैज अहमद फैज को जानते थे. फैज अहमद फैज वाज अ विटनेस इन दैट ट्रायल, मंटोस ट्रायल. और लाहौर में उनके मतलब कि शायर व शायरी बहुत होती थी जी. एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट विल टेल यू कि जब वो लेक पे सैर करते थे, कोई मिल जाए तो मतलब he would people would stop and listen, because he was a master of he knew almost he could recite शायरी like of every great शायर in the country. Super. तो उसी माहौल में हम पैदा हुए और उसी माहौल में हम बड़े हुए. My brothers also, my eldest brother in particular. Right. Yeah, both English literature and Urdu. He's a master. तो आप लोग के घर पे भी पूरा कल्चर था. कल्चर था. बाहर जब वहाँ वापस घर जाते थे तो यही माहौल बना था. तो उसी से फिर मैंने I only started this 10-12 years ago. पहले मैं बहुत कम लिखता था. पीछे मैंने लिखा. अभी my third book of English poetry is ready to be published. What is your muse, sir? What is your inspiration? आप क्या सोच के लिखते हैं? क्या है ज़्यादातर आपकी राइटिंग में? It's basically सूफियाना ख्याल ज़्यादा है. अच्छा. खुदा के बंदे बदल जा, वक्त है अब भी समझ जा. क्या बात है, ये बहुत ही खूबसूरत है.